السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ محترم حضرات و خواتین، میں انشاءاللہ روزانہ اگر جس دن جب تک کھبلی شہر میں رہوں گا 15 سے 20 منٹ گفتگو کرتے رہیں گے، اور اس کا ٹاپک جو ہے وہ ہمیشہ رمضان سے ریلیٹڈ رہے گا۔ آج ہم جو بات کرنا چاہتے ہیں کہ یہ رمضان جو ہے وہ ہر بار آ کر بتاتا کیا ہے، ہر سال یہ رمضان جو آتا ہے یہ کیا پیغام دے کے جاتا ہے، اور ہم اس پیغام کو پکڑ پا رہے ہیں یا نہیں۔ حقیقت کیا ہے کہ یہ تو لوگ سمجھیں گے، بات سمجھ رہے ہیں، بات کبھی سمجھیں گے۔ قرآن کریم کا جو نازل ہونا ہے، قرآن کریم کا اللہ کی جانب سے دنیا میں، یہ ایک ایسی کتاب ہے حقیقت میں کہ اگر اس کتاب پر واقعی میں دنیا عمل کرے، اور اسپیشلی مسلمز عمل کریں، تو یہ جتنا آپ کرپشن دیکھ رہے ہیں سب پر کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ یہ بار بار رمضان جو آتا ہے وہ بتانا چاہتا ہے کہ یہی وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے اتنی اہم کتاب نازل فرمائی۔ آپ دیکھیں جو بہت بڑے بڑے لوگ ہیں، مثال کے طور پر امبانی صاحب ہیں، دنیا کے بڑے مالدار آدمی ہیں، لیکن اندر سے اتنا خوف زدہ ہیں کہ وہ اکیلے بازار نہیں جا سکتے، چاہے جتنا پیسہ ہو۔ آپ جس کو سمجھ رہے ہیں یہ بڑے سکون سے ہیں، وہ سب سے زیادہ کیا ہیں، اندر سے پریشان ہیں۔ جب بھارت میں یو ایس کے پریزیڈنٹ اوباما صاحب آئے تھے، ایک آدمی کی حفاظت کے لیے 1,00,000 سیکورٹی لگائی گئی تھی۔ یہ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ یہ ہو رہا ہے کہ دنیا اللہ کے کلام پر عمل نہیں کرتی ہے، تو دیکھنے میں ہو سکتا ہے شو بازی ہو جائے، لیکن مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ کتنے دن سے بھارت بے روزگاری کو کنٹرول کرنا چاہ رہا ہے۔ ہر 5 سال کے بعد جب ڈاٹا آتا ہے بے روزگاری کا، تو بے روزگاری کیا رہتی ہے؟ بڑھی ہی رہتی ہے۔ حقیقت اس کی صرف ایک ہے کہ اس دھرتی پر جب تک اللہ کے کلام کے مطابق، اس کے حکم کے مطابق زندگی نہیں گزاری جائے گی، نہ آدمی کو سکون ملے گا، نہ کرپشن ختم ہو سکتا ہے، نہ ہمارے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ تو یہ بار بار آ کر کے یہ بات بتانا چاہتا ہے۔ قرآن کریم، جبریل امین ہر سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ جب آئے اور رمضان فرض ہوا سن 2 ہجری میں، تو جبریل امین برابر آتے تھے اور اللہ کے رسول کو قرآن کریم جتنا نازل ہوا رہتا تھا سناتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی سناتے تھے۔ تو یہ وجہ اس کی کیا ہے؟ قرآن نے کہا ہدی للناس، یہ کیا ہے؟ پوری دنیا کے لیے گائیڈ لائن دینے والی کتاب ہے۔ آپ تلاش رہے ہیں گائیڈ لائن کہاں سے، کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے، تلاش کے تھک چکے ہیں۔ ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا، چاند پر پہنچنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن بیچارہ خود یہ سمجھ نہیں پا رہا ہے کہ ہم کہاں سے آئے ہیں اینڈ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ تو ایک یہ یاد دہانی ہے کہ ہدایت اسی کتاب میں ہے۔ نمبر 2، یہی وہ کلام ہے جس کے بارے میں حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دنیا کا اتار چڑھاؤ، جس کو آپ کہہ لیجیے ڈاؤن فال، یا یہ اس دنیا کا عروج،
दोनों डिपेंड है इस किताब के ऊपर। हबीब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुस्लिम शरीफ की रवायत है, इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़ल किताबि अक़वामन व यज़उ बिही आख़रीन, कि अल्लाह ताला इसी किताब के जरिए कौम को उरूज बख्शता है और इसी किताब के जरिए कौमों को ज़वाल देता है। एक छोटी सी मिसाल देता हूं, जिन लोगों के पास बड़ी टेक्नोलॉजी है, हमारे नबी के ज़माने में कुछ भी कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, सिर्फ एक फार्मूला था कि अल्लाह ने जो कहा है उसके खिलाफ कुछ नहीं होगा। उस वक्त की सुपर पावर ताकतें सरेंडर हो गई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस वक्त भूख का यह आलम था, गौर से सुनिएगा, कितना आदमी का जो है वो मोरल हाई रहता है। जिस वक्त भूख की वजह से पेट पे पत्थर बंधा हुआ था, उस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मारा पत्थर पे और हजरत सलमान फारसी ने कहा कि मेरे हिस्से की जो खंदक आई है मैं खोद नहीं पा रहा हूं, अल्लाह के रसूल आए और मारा और पत्थर टूटा। जब पत्थर से चिंगारी निकली, दोनों भूखे थे। कौन? सलमान फारसी भी भूखे थे और हबीब मुस्तफ़ा को भी भूख लगी थी, लेकिन मोरल इतना आई था, आपने फरमाया सलमान फारसी घबराना नहीं, ये जो चिंगारियां मुझे निकली है पत्थर से, मुझे इसमें सीरिया के वो महलात नजर आ रहे हैं। ऐसा आदमी ऐसे बातें कैसे कर रहा है? जिस आदमी को भूख लगी हो उसके लिए सबसे बड़ा मसला क्या है कि उसकी भूख खत्म हो जाए, लेकिन भूखा आदमी इतनी हाई बातें कर रहा है। जब मदीने वालों ने हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, मक्के वालों ने जब हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मजबूर कर दिया कि आपको छोड़ना ही छोड़ना है, और इतना मजबूर कर दिया कि सफर भी ओपनली नहीं हो सकता था, छुप कर सफर किया गया। और जब अल्लाह के रसूल तीसरे दिन गारे सौर से निकले, निकलने के बाद लंबा वाकया, मैं सिर्फ असल बात बताना चाहता हूं। सुराका ने पीछा किया, हबीब मुस्तफ़ा के पास तक पहुंचे। 200 कैमल इनाम रखा गया था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर को कोई पकड़ ले तो उसको 200 कैमल इनाम दिया जाएगा, 200 ऊंट इनाम दिया जाएगा। हबीब मुस्तफ़ा के पास सुराका आते हैं और सुराका कहते हैं कि मैं समझ गया कि आपको कोई ना कोई ऐसी जात हिफाजत कर रही है, वरना मैं आज तक घोड़ा पीछा किसी करने के पर गिरा नहीं हूं। और जब सुराका ने कहा कि अल्लाह के रसूल, मैं भी ईमान लाता हूं और मैं भी मदीना आऊंगा, और आप मुझे एक पेपर लिख दीजिए, आप उसको समझाने के लिए आप ये कहिए मुझे वीजा दे दीजिए, मैं भी मदीना आऊंगा। हबीब मुस्तफ़ा फरमा रहे हैं, जो अपने बाप की प्रॉपर्टी पर कब्जा नहीं कर पा रहे हैं, जो सरेआम सफर करने की पोजीशन में नहीं है, छुप करके सफर किया जा रहा है, ऐसे मौके पर हबीब मुस्तफ़ा ने फरमाया, सुराका याद रखना कि ये दुनिया की 2 सुपर पावर ताकतें कैसर और किसरा ऐसे सरेंडर होंगे और उसके सोने के कंगन तेरे हाथों में होंगे। ये ऐसे मौके पर ऐसी बातें, सिर्फ एक बात पे नाज था कि जिस किताब को हमारे रब ने हमको दिया है उसको इतनी मजबूती से पकड़े हुए थे। कुरैश ने कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसके जो बातें हैं थोड़ा से आप इसमें कंप्रोमाइज कर लीजिए। ये भी ऑफर आया। हबीब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये मेरा कलाम नहीं है, ये जिसका कलाम है वो कभी कंप्रोमाइज नहीं करता, दुनिया कंप्रोमाइज उसके सामने करती है। ये वो किताब, ये रमजान इस वजह से आया है, ये बताना चाहता है कि जब तक इस किताब पर मुसलमान अमल नहीं, कितना आप कोशिश कर रहे हैं लास्ट 15 ईयर से, पिछली जब से भारत बना है, जब से भारत आजाद हुआ है 1947 से लेकर अब तक, जितना 15 साल में मुसलमानों ने स्ट्रगल किया है कभी नहीं किया है। हर फील्ड में मदारिस के जाल बिछा दिए गए, इतनी बड़ी बड़ी जमातें निकाल दी गई,
कोचिंग सेंटर चलाए जा रहे हैं, नीट की तैयारी कराई जा रही है, आईएएस बनाए जा रहे हैं, लेकिन जिल्लत का ग्राफ डेली क्या हो रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। सारी कोशिशें क्यों? क्योंकि असल जिल्लत से निकालने वाली किताब पर यकीन हो और अमल हो। क्यों? हबीब मुस्तफा, खुदा की कसम खा के कहता हूं, मस्जिद में बैठा, हबीब मुस्तफा बोलते वही हैं जो रब बुलवाता है। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वहयुन यूहा, ये वही बोलते हैं जो बुलवाया जाता है। वो उन्होंने ये बात कही, अल्लाह के बुलवाने पर अगर वाकई में विश्वास आप रखते हैं कि अल्लाह है, अल्लाह से ज्यादा कोई इस दुनिया को, क्योंकि उसने बनाया है, वो एक एक लीकेज इसके जानता है, वो एक एक प्रॉब्लम को हल करने की सलाहियत रखता है, आइडियाज देता है। उसने हबीब मुस्तफा से कहा था कि अल्लाह यरफउ बिहादल किताब अक़वामन व यदउ बिही आखरीन, की इनको खबर दे दो, अगर इस किताब को रमजान में आप समझते हैं, प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व्ड ओनली बाय द कुरान। क्या कुछ नहीं होना है, जितनी कोशिश करना है कर रहे हो, करते रहोगे, एनर्जी बर्बाद होती रहेगी, मसला नहीं हल होगा। नंबर 3, यही वो किताब है। हकीकत में देखें कि एक मोबाइल का बनाने वाला इंजीनियर सबसे ज्यादा जानता है इस मोबाइल के बारे में, इसलिए वो इसके साथ एक बुकलेट देता है कि हाउ टू ऑपरेट, कि आप इस मोबाइल को यूज कैसे करेंगे। अगर आपने तय कर रखा है कि मैं मोबाइल में उस ऑपरेटर की बात नहीं मानूंगा, तो आप मोबाइल को बर्बाद तो कर सकते हैं, इस्तेमाल नहीं कर सकते। हम इस दुनिया को इस्तेमाल कर सकते हैं, अपनी जात को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए ये बुकलेट आई है जिसका नाम कुरान करीम है। उसके जरिए ऑपरेटर होगा, मामला ऑपरेट किया जाएगा, तब जाकर के मामला बनेगा। ये दस्तूर हयात है, ये छू मंतर की किताब नहीं है, ये आंधलों के लिए तावीज लिखने की किताब नहीं है, ये अपने दरवाजे पर और अपने घरों में लटकाने वाली किताब नहीं है। ये वो किताब है कि जिसकी एक एक आयत पर हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि नुज़ूल कुरान का मकसद इस पर अमल है। जिन लोगों ने अमल किया, दुनिया उनके सामने सरेंडर हुई। ये पहली वजह है जिसकी वजह से ये किताब आई है, और रमजान आपको इसका की याद दहानी करा रहा है। दूसरी चीज, गौर से सुनिएगा, दूसरी चीज, अल्लाह को अपने बंदों से इतना प्यार है, इतना प्यार है, कभी क्यों, एक गौर से सुनिएगा, जो क्रिएटर होता है किसी चीज का, हर क्रिएटर को, हर खालिक को अपनी मखलूक से नेचुरली तौर पर क्या होता है, प्यार होता है। आपके घर में बच्चा है छोटा, ड्राइंग करता है, बहुत बेकार ड्राइंग करता है, यूकेजी एलकेजी फर्स्ट स्टैंडर्ड का बच्चा, लेकिन अपनी अम्मी के पास लेके जाता है, भैया के पास, देखो मैंने किया है। चाहता क्या है कि मेरी इस ड्राइंग को अप्रिशिएट किया जाए, मेरी इस ड्राइंग को अच्छा कहा जाए। क्यों? क्योंकि वो उसका खालिक है। अगर आप ये कह दें उसके सामने, बच्चे के सामने, या उसका फाड़ कर फेंक दे उसकी ड्राइंग को, आप उसका गुस्सा देखिए, क्योंकि वो खालिक है उसका। ऐसे ही परवरदिगार आलम कि हम क्रिएशन है, वो हमारा क्रिएटर है, वो हमारा खालिक है। जैसे उस बच्चे को अपनी बेकार सी ड्राइंग पर प्यार है, रब को अपनी अच्छी मखलूक पर प्यार है, और उसमें सबसे अच्छी मखलूक कौन है? हम हैं। इमाम शाफी अलैहि रहमा के पास एक मसला आया, जबकि वो शागिर्द थे, तालिब इल्म थे। इमाम वकी रहमतुल्लाह अलैह बैठे पढ़ा रहे थे। एक साहब ने कहा कि मैंने कसम खाई है कि अगर मेरी बीवी चांद से ज्यादा खूबसूरत नहीं हुई तो इसको तलाक है। वो लेकर के आए, उन्होंने कहा हजरत बीवी ऐसी है कि बस मैं क्या बताऊं। इमाम वकी ने कहा कि अगर तुमने ये कसम खाई है तो तलाक हो गई। इमाम शाफी बैठे हुए थे, शागिर्द थे, उन्होंने कहा हजरत अगर मुझे इजाजत हो तो मैं भी बात करूं। इमाम शाफी ने कहा कि कतई तलाक नहीं हुई है।
इमाम वकी ने पूछा क्यों? कहा अल्लाह हमारा बोलता है लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम, मैंने इंसान को इस दुनिया में सबसे बेहतरीन पैदा किया है। इंसान जिसको दुनिया बदसूरत भी कहे वो भी हर क्रिएशन की, अल्लाह की क्रिएशंस में सबसे अच्छा है, ज्यादा तलाक वाक़ई नहीं हुई। ये मखलूक जिससे अल्लाह को इतना प्यार है, ये रमजान आता है क्यों? ताकि किसी तरीके से आप इस रमजान में अल्लाह से जुड़कर, वो इतना ज्यादा इस महीने में बंदों से प्यार करता है कि लोग आ जाएं मेरे सामने। कितने बड़े बड़े लोग होते हैं, अम्मी होती हैं, कभी नाराज हो जाती, क्या कहती, दूसरों से कहलाती, एक मर्तबा माफी मांग ले मैं माफ कर दूं, माफी के लिए वो तैयार है। गलती आपने और हमने की है, परवरदिगार आलम भी यही कह रहा है कि कम से कम, हालांकि वो बेनियाज जात है, उसके बावजूद अपने प्यार की वजह से वो कहता है कि अगर मेरे सामने आ जाए मुझसे मांग ले तो मैं माफ कर दूं। ये महीना इसलिए आया हुआ है कि हम अपने आप को जहन्नम से कैसे बचा लें। परवरदिगार आलम कतई नहीं चाहता है कि कोई उस आग में जाए। आप सोचेंगे फिर जहन्नम में डालता क्यों है? आज सुन लें इस बात को। एक सहाबी ने आकर के अल्लाह के रसूल से कहा, देखा कि एक औरत है खाना पका रही है दरख्त के नीचे, बच्चा छोटा है, बार बार बच्चा आग की तरफ आता है, औरत ने जाके बच्चे को दूर रखती है, फिर बच्चा आता है। वो सहाबी ने जब देखा कि ये अल्लाह ताला बंदों से प्यार करता है और बोलता हम आग में डाल देंगे, ये अम्मा पसंद नहीं कर रही है बच्चा आग के करीब जाए, अल्लाह आग में कैसे डालेगा? ये उनको क्रॉस क्वेश्चन आया। आए हबीब मुस्तफ़ा के पास कि अल्लाह के रसूल ऐसा ऐसा मैंने देखा, फिर आप बोलते हैं कि अल्लाह जहन्नम में डाल देगा। हबीब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी कभी जब सवाल कोई करता था और टिपिकल होता था तो आप सर झुका के बैठ जाते थे 1-2 मिनट के लिए कि मेरा रब मुझे गाइड करे कि मैं इनको क्या रिप्लाई करूं, क्योंकि सवाल टिपिकल था, बड़ा डिफिकल्ट था। हबीब मुस्तफ़ा ने सर उठाया और कहा कसम है उस जात की जिसके कब्जे में मेरी जान है, कोई भी शख्स जहन्नम में नहीं जाएगा जब तक कि वो इस दुनिया में शिर्क नहीं करेगा। सवाल शिर्क वाले को क्यों डालेगा, वो भी तो बंदा ही है। डॉक्टर इसरार साहब ने जवाब दिया। डॉक्टर इसरार अलैहिर्रहमा ने कहा कि एक मां बच्चे को बहुत प्यार करती है, बहुत प्यार करती है, लेकिन अगर बच्चा जवान होके किसी दिन मां की इज्जत पर हमला कर दे तो बताइए अब मां अपना प्यार करेगी या मर्डर करेगी? उन्होंने कहा अगर उसके हाथ में चाकू होगा तो चाकू मारेगी, रिवॉल्वर होगी तो गोली मारेगी उसी बच्चे को जिसको 100 मरतबा चूमती है, लेकिन अब तुमने उसकी इज्जत पर हमला कर दिया, ज्यादा सब कुछ खत्म, सारी प्यार और मोहब्बत खत्म। ऐसे ही तौहीद रब की इज्जत है, उसकी इज्जत से नहीं खेले कभी भी। जब उसकी इज्जत से खेला जाता है तो उसको कोई परवाह नहीं होती, जैसे उस मां को परवाह नहीं होती है कि अब गोली चले या ना चले, बच्चा मर जाए, कत्ल हो जाए, लेकिन उसको कोई फिक्र नहीं है। ये महीना आया है, हमारा रब हमसे प्यार करता है और चाहता है कि मेरे बंदे मेरे सामने आ जाए, क्योंकि इतनी बड़ी हस्ती है अल्लाह कि क्या बताया जाए, लफ्ज नहीं है। वो अल्लाह हमसे कहता है, और स्पेशली इस रमजान में, और कहता कि उसी रमजान में क्यों कहता है, 1.5 मिनट और बात मालूम क्यों कहता है? अल्लाह को सबसे बेहतरीन टाइम आपकी जिंदगी का वो है जब आपके ऊपर खौफ खुदा होता है। 14 आवर्स का रोजा चल रहा है, 1 सेकंड के लिए अगर अल्लाह का खौफ निकल जाएगा तो हमारे बंदे, अल्लाह के बंदे और बंदियां रोजा तोड़ देंगी। पानी हलक तक जाता है वजू में, लेकिन पानी नीचे नहीं जाता। रब इतना खुश होता है कि देखा नहीं है लेकिन मानता कितना है। ये रमजान में कैफियत होती है, इस बुनियाद पर रब्बे जुल जलाल हमसे इतना प्यार करता है। ये बातें आपसे करना चाहते थे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला कहने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।